Assalamu alaikum dear students, I am your teacher Rida Imtiaz and today we are going to do word problems of exercise 1.6. We have question number 2. The length of a rectangle is 4 times its width. So we are given with a rectangle whose length is 4 times its width. Now suppose that the length of the rectangle is x and width is y. Clear? Rectangle have opposite sides of equal lengths. So if this is x, it will also be x. This is y, this is also y. Clear? Equal. So right here, let the length of rectangle is x and width is y. Clear? Okay. Now what equation we have to make? We have to make the equation that the length is 4 times width. 4 times mean 4 multiplied by width. Clear? So length is x, length is की जगह आपने लगाना है equal to. Clear? So length is 4 times width. Width is y. Clear? Length is 4 times width. So make equation from here, x minus 4y is equal to 0. Clear? Then we have the next, the perimeter of rectangle is 150. Now what is perimeter? Perimeter is the boundary of the rectangle or the sum of all the sides of the rectangle. So sum of all the sides means that it have 2 lengths and 2 widths, 4 total. So आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है because the rectangle have 2 lengths and 2 widths. Okay, 4 sides. So this perimeter of a rectangle is 150. So 150. This is the formula for finding the perimeter of a rectangle. 2 into x plus y. 2 lengths, 2 widths. Okay. So आपके पास यहाँ से एक और स्टेटमेंट आती है, इक्वेशन आती है 2x plus y equal to 150. Now take this 2 to the right side. So it will become x plus y is equal to 150 by 2. 150 by 2 means 2 7 the 14 and 2 5 the 10. Okay. So हमारे पास 2 equations हैं. This is equation 1 and this is equation 2. Clear? So now students, हमने इन दो equations को लेकर matrices से solve करना है, same as question number 1. So we are going to write these 2 equations in matrix form. Clear? So these are the 2 equations. Now we are going to write these in matrix form. We are making coefficient of matrix. How to make coefficient of matrix? By writing the coefficients here. So 1 minus 4, 1 1. Clear? X and y, matrix of unknowns, and then B matrix, which is 0 75. So the first matrix is A, X and B. So now this is in the matrix form. So students, you have to keep this thing in your mind कि जब आप matrix के लिए इक्वेशंस लिखेंगे तो इक्वेशंस में आपने x और y को लेफ़्ट साइड पे रखना है और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको आपने राइट साइड पे रखना है एंड देन आपने मैट्रिक्स फॉर्म करना है. क्लियर? कांस्टेंट मस्ट बी ऑन द राइट साइड. फर्स्टली आपने x वाली टर्म रखनी है एंड देन आपने x वाली टर्म एंड देन y वाली टर्म. क्लियर? सो अब आपके पास स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है. आपने इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है. क्लियर? सो आई होप सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व देम. सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ एंड यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ बाय यूजिंग द बोथ ऑफ द मेथड्स. क्लियर? Okay students, now we have question number 3. Two sides of rectangle differs by 3.5 centimeter.
रेक्टेंगल की टू साइड्स हैं x and y and the two sides differ by 3.5. differ mean subtract. Okay, so let the two sides be x and y. Okay, so two sides of rectangle differs by 3.5 means कि दोनों sides में कितना difference है 3.5 का. Clear? So the difference of the two sides is 3.5. Clear? Find the dimensions of rectangle. Dimensions का मतलब होता है length, width. Okay? So find the dimensions of the rectangle if its perimeter is 67. Perimeter हमेशा हमारे पास 2 into x plus y होता है. ठीक है, perimeter is the sum of all the four sides. So 2x plus y, perimeter is 67. So 67. अब स्टूडेंट्स अगर हम 67 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आता है. क्लियर? सो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67. अगर आप पॉइंट्स में नहीं मूव करना चाहते सो 2x प्लस 2y इक्वल टू 67 कर लें. और जो ये इक्वेशन है आपके पास, इसके पॉइंट को भी ख़त्म करने के लिए, दिस इज़ 3.5, तो इसके पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल बिकम 10x माइनस 10y इज़ इक्वल टू, जब आप 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.5 का पॉइंट ख़त्म करें तो 10 आता है. ठीक है, सो 3.5 बन जाएगा 35/10. इसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 35. सो इसको आप इक्वेशन 1 कह लें. व्हाट वी डिड, हमने इस डेसिमल को ख़त्म किया है बाय मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन विद 10. सो हमारे पास इक्वेशन बन गई है 10x माइनस 10y इक्वल टू 35 एंड दिस इज़ इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल टू 67. अब हम यहाँ से मैट्रिक्स बनाते हैं. सो इक्वेशन 1 में हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं +10 माइनस 10. सो 10 माइनस 10. इक्वेशन 2 कोफिशिएंट्स आर 2, 2. Unknown, and on the right side we have constants 35 and 67. So 35, 67. Clear? Now this is a, x, b. Now solve the question using the two methods. Clear? Okay students, now we have question number 4. The third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of the two equal angles. Now students, हमारे पास है isosceles triangle और isosceles triangle. Isosceles triangle ऐसा triangle होता है जिसकी two sides and two angles सेम होते हैं, equal होते हैं. ठीक है, अगर एक एंगल 30 का है तो दूसरा भी 30 का होगा, और अगर एक लेंथ 6 सेंटीमीटर की है तो दूसरे भी 6 सेंटीमीटर की होगी. मीन्स दैट आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स इक्वल. क्लियर? सो आपने क्या करना है, यू हैव, इट इज़ गिवन दैट द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आप स्टूडेंट्स हम लेट करते हैं, लेट द इक्वल एंगल्स ऑफ isosceles triangle बी एक्स. ठीक है, दो ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं दो वो सेम है, इक्वल हैं. सो हम लेट करते हैं कि अगर इक्वल मीन्स कि अगर एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स डिग्री ही होगा. क्लियर? सो द थर्ड एंगल, while the third angle is बी वाई डिग्री. ठीक है, जो इक्वल एंगल्स हैं वो एक्स है 2 और जो थर्ड एंगल है वो वाई है, लेट सपोज. सो द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस. थर्ड एंगल 16 लेस है, 16 माइनस करना है आपने, देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स. तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है,
थर्ड एंगल्स मीन y. Clear? The third angle of an isosceles triangle is 16 less. यानी कि थर्ड एंगल जो है वो 16 लेस है. 16 लेस मीन 16 माइनस करें किस में से? द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स. आपने सम करना है टू इक्वल एंगल्स का और 16 लेस करना है. सो अब देखें स्टेटमेंट इस पर किस तरह से आपने करनी है. द थर्ड एंगल इज़ 16 less than sum of the two equal angles. So the equation becomes y is equal to 2x minus 16. आप इसको अरेंज करें तो ये बन जाएगी, आप इसको पॉजिटिव ही रहने दें. सो ये बनेगी 2x को यहीं पे रहने दें, y को इसके साथ ले आए. सो 2x माइनस वाई एंड 16 को आप टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये बन जाएगा प्लस 16. इज़ इट क्लियर? किस तरह से हमने फॉर्म की है. 2x को हमने इधर रहने दिया, y को हम इसके साथ लाए हैं. सो 2x माइनस वाई एंड 16 माइनस में था, ये पॉजिटिव हो गया. क्लियर? एंड y पॉजिटिव था, वो माइनस में हो गया. सो 2x माइनस वाई इक्वल टू 16. दिस इज इक्वेशन 1. इज इट क्लियर? नाउ वी हैव फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. आपको तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. तो स्टूडेंट्स हमारे पास x एंड y 2 अननोन्स हैं. सो अभी हमारे पास एक ही इक्वेशन है और 2 अननोन्स के लिए 2 इक्वेशंस होनी चाहिए. ठीक है. सो दूसरी इक्वेशन हम किस तरह से बनाएंगे. वी नो दैट कि ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं x प्लस y, दीज आर द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. 2 आर सेम एंड 1 इज़ डिफरेंट. सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को अगर हम सम करें तो 180 के इक्वल होता है. सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 180. आपके पास ये इक्वेशन बनेगी. ठीक है. सो दिस इज़ नेम्ड एज इक्वेशन 2. 2x माइनस वाई इक्वल टू 16 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 180. आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, आपने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व देम. सो हाउ टू राइट दीज इन मैट्रिक्स फॉर्म. 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, मैट्रिक्स ऑफ अननोन एंड देन कॉन्स्टेंट्स 16, 1, 80. इज इट क्लियर? नाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस यूजिंग द Cramer rules and matrix inversion method. Okay, now we have question number 5. One acute angle of right triangle is 12 more than twice the other. Students, acute angle कौन सा एंगल होता है? The angle which is less than 90 degree. 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है उसे हम acute angle कहते हैं. एंड राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो. राइट एंगल ट्राइंगल इज़ द ट्राइंगल हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर? सो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल इज़ 12 मोर. यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो एक्यूट एंगल है वो 12 मोर है देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल. अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं एंड तीनों एंगल्स का सम इक्वल टू 180 होता है. सो अगर आपके पास एक एंगल 90 का है तो आपके पास बाकी 2 एंगल्स का जो सम है वो 90 के इक्वल होना चाहिए, तब आपके पास 180 बनेगा. सो इट्स मीन कि बाकी जो 2 एंगल्स होंगे वो लेस देन 90 होंगे, तभी उनको एक्यूट एंगल कहा जाता है. सो लेट करेंगे हम, let the 2 angles of right angle triangle or right triangle is x and y. Let the 2 angles of the right angle triangle are x and y. ठीक है. और वो दोनों एंगल्स जो हैं वो एक्यूट हैं. एक्यूट में लेस देन 90 हैं. सो लेट द 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्रायंगल्स आर x एंड y. क्लियर? सो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल राइट एंगल का 12 मोर है.
सो स्टेटमेंट बनेगी कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 12 मोर। आपने 12 मोर करना है, किस में मोर करना है, किस में ऐड करना है, ट्वाइस द अदर, ट्वाइस ऑफ द अदर में। क्लियर? सो वन एक्यूट एंगल इज मीन इक्वल टू, वन एक्यूट एंगल इज इक्वल टू 12 मोर, मोर मीन्स ऐड करना है, 12 मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर। सो आपके पास ये इक्वेशन बनती है, आप इसको अरेंज करें, x माइनस 2y is equal to 12. Clear? So this is the equation 1. Find acute angles of right triangle. Now students, second statement हमारे पास given नहीं है और हमारे पास दो unknowns हैं, ठीक है। सो हम टू unknowns के लिए हमें टू equations चाहिए होती हैं। वन equation हमारे पास given है from the statement. नाउ सेकंड इक्वेशन हम किस तरह से बनाएंगे, वी नो दैट अगर हम ट्राइंगल के तीन एंगल्स को ऐड अप करें तो हमारे पास 180 आता है। सो x इज़ द फर्स्ट एंगल, y इज़ द सेकंड एंड थर्ड एंगल इज़ 90 डिग्री, क्योंकि देखिए आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होगा और बाकी दो x और y होंगे जो कि अननोन है, और इनको अगर हम ऐड अप करें तो हमारे पास 180 के इक्वल आता है, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180। सो आप इसको अरेंज करें तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। क्लियर? सो इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। सो दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर? नाउ हम मैट्रिसेस किस तरह से बनाएंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, कांस्टेंट, अननोन एंड देन कांस्टेंट्स। सो x, दिस इज इक्वेशन 1, 1 minus 2 is the coefficient, and in equation 2 coefficient is 1 1. Clear? Then unknown are x and y, and constants are 12 and 90. So 12 90. Is it clear? So now you have to solve them. So this is all for today. If you have any confusion you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.